Good morning, everyone. So, students, again I welcome you with my same session, flow of execution. In that, earlier we have discussed about the conditional statements. Then in my last video, students, I have discussed with the for loop statement or the iteration statements. कैसे work करता है? What are the three parameters to define a loop? Initialization, test condition, and updation. And student, we have discussed with some programs based on the for loop. Now we will start with the while loop today, and then we will follow on with the nested for loop. So student, starting with the while loop में क्या difference है as compared with the for loop? देखिए, in the last video student, what I have done, when I was defining my for loop for I in range, in the bracket I was saying that just initialize the initialization comma test condition comma updation. लेकिन अगर हम while loop की बात करें तो while loop is a loop जिसमें हम initialization को we define before the while, then in the while condition we always define the test expression, and in the method of the while we'll define the updation part. लेकिन स्टूडेंट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी कैनॉट स्किप एनी ऑफ द कंडीशन. हम किसी भी कंडीशन को स्किप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इन्फिनिटी प्रोसेस इज गोइंग टू बी जनरेट. अब आप एज्यूम कर लीजिए कि अगर मैं रेसर को इनिशियल पॉइंट नहीं बताता, या मैं रेसर को टेस्ट कंडीशन की उसकी लिमिट नहीं बताता, या मैं रेसर को पाथ या ट्रैक या अपडेशन नहीं बताता, तो द लूप इज नॉट गोइंग टू बी जनरेटेड. सेम एज वी शुड अप्लाई ओवर द वाइल लूप. तो वाइल लूप और फॉर लूप में वी कैनॉट स्किप एनी ऑफ द पैरामीटर. हमें तीनों पैरामीटर्स को प्रॉपरली यूज करना होता है. क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द while loop. So starting with the session again, implementation demonstration is required more while making these all loop statements. So now I'll start with the practical part, students. So starting with the practical part now, okay students, so starting with the practical part, today's topic is a loop statement, or we can say today's topic is a while loop. Students, I'll discuss with you some of the important topic from the same. तो कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपसे जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द सेम टॉपिक. नाउ while loop में आई एम टेकिंग ए स्मॉल प्रोग्राम where I have to print the values from, या कह सकते हैं कि मुझे values 1 to 4 मुझे प्रिंट करना है in the order. So I have to print the value 1 to 4, but I'll use the while loop statement at how I'm going to construct this program. Now starting with this one, first of all student, the three parameters initialization, लेकिन we need the iterative variable. Earlier we were using for I in range, वो तो I क्या था students, I iterative variable, वो अपनी values को change कर रहा था 1 2 3 4, same as will apply in the while loop. Now what we will do, I'm going to start with my variable I and its initial value is 1. Now student आप समझिएगा for loop से क्या difference है. For loop से ये काफ़ी difference में आता है, because for loop में we always define these all parameters inside the for statement. लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते हैं, we always integrate these one. हम हमेशा इसको integrate करते हैं. Clear? Now that means if I'm using I equals to 1, that is what? That is the initialization process. ये मेरा initialization होगा. ठीक है? Now starting with the next one, then we will have the while condition. लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, while loop में हम हमेशा टेस्ट एक्सप्रेशन को असाइन करते हैं. Now my program is that I have to make a program where 1 to 4 value should be printed on the screen. So I'll use I is less than 5. Now student, why I have taken 5? ये शायद आपको क्लियर होगा, क्योंकि n-1 चलते हैं. जो भी स्टेप आप वहाँ पे लिखेंगे उसका एक -1 ही आपका प्रोग्राम, that will be the limit of the loop. Now student, test condition, I is less than 5 is the test condition, and that I have defined inside the while loop.
वाइल लूप में इसके अलावा कोई भी पैरामीटर नहीं आता है, ओनली द टेस्ट कंडीशन हैज़ टू मेंशन ओवर देयर. नाउ नेक्स्ट वी हैव द बॉडी ऑफ द वाइल. अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बॉडी ऑफ द वाइल मतलब अगर वाइल ट्रू होगा तो ही ये पार्ट वर्क करेगा, अदरवाइज दिस पार्ट विल नॉट वर्क. नाउ द क्वेश्चन वाज कि यू हैव टू प्रिंट द वैल्यूज. तो नाउ आई एम मेंशनिंग द वैल्यूज एज इट इज, लेकिन वैल्यूज तो आई के पास आएंगी बिकॉज आई लूप 1 से स्टार्ट होगा 4 पे खत्म होगा. तो अगर मैं हर स्टेप पर आई को मेंशन करता हूँ तो समवेयर इट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ओवर देयर. नाउ वन थिंग इज मिसिंग इन दिस लूप एंड द मिसिंग टर्म इज कि बिना अपडेशन के भी लूप पॉसिबल नहीं है. लूप को फाइनाइट बनाना है तो 3 ऑफ द पैरामीटर्स आर मैंडेटरी इन आवर प्रोग्राम. दैट्स व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू हैव द अपडेशन. सो स्टूडेंट, इन द फॉर लूप आई वाज यूजिंग +1 कर रहे थे, लेकिन दिस इज बेसिकली एन स्टेटमेंट जहां पे हम आई को इस तरीके से यूज करेंगे. ठीक है, तो दैट इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू यूज द स्टेटमेंट. तो ये अपडेशन मैंने किया, लेकिन अपडेशन स्टूडेंट वाइल के अंदर ही हो रहा है बिकॉज इट कैनॉट बी डिफाइंड आउटसाइड द वाइल, अदरवाइज ये इनफाइनाइट बन जाएगा. अब आपको लग रहा होगा कि दैट वाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी एन इनफाइनाइट प्रोसेस. सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड. स्टूडेंट, डोंट बी कंफ्यूज विद द कमेंट. ये कमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. सो नाउ method of while loop I'm going to start. So now just understand one thing students, यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा. Suppose that I'm going to give the command to run this program right now. तो प्रोग्राम को रन करते हैं. When the program will be under the running condition, तो प्रोग्राम रन कैसे होगा ये चेक करते हैं. Listen, first of all the interpreter will start from top to bottom. So here we have I equals to 1, first line, very first line, which says that I को 1 करो. So when I is 1, when I equals to 1, इसमें मैं कमेंट दे रहा हूँ तो हैश का यूज करूंगा. When I will be 1, then what will happen? टेस्ट करेंगे. Now what is the test condition students? I less than 5. That means I less than 5. Now tell me one thing, if the value of I is 1, वो 1 is less than 5, true? That means ये true message है. और अगर ये true है student, then what will happen? Just check the method of the while loop. अगर ये true है तो क्या प्रिंट होगा? Values I. So now what is the values I? I की वैल्यू क्या है? 1. That will be displayed on the screen. Then updation students, I equals to I plus 1. Now just tell me one thing, what should be the value of I then? What should be the value of I? The value of I will be कितना? It will be 1 plus 1, 2. That means now the new value of I is 2. So when I equals to 2 पे चलेंगे. लेकिन स्टूडेंट जस्ट वन स्टेप टू अंडरस्टैंड. मैंने अभी जब ये पूरा स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया, द प्रोसेस आई हैव फॉलोड वाज आई की वैल्यू 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 वैलिडेशन कर रहा है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4. नाउ फ्रॉम द सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स इट विल नेवर गो टू आई इक्वल्स टू 1, बिकॉज अगर आप समझ जाते हैं कि अगर आई 1 पे जाएगा तो ये आई हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा. दैट्स व्हाई नाउ इट विल प्रोसीड विद द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4. तो जब तक कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी टर्मिनेट, नाउ द स्टेप फॉलोड विल बी स्टेप नंबर 2 3 4 2 3 4 2 3 4 when the program is not going to be terminated. Clear? So now taking the condition when the value of I will be 2. So now just check the test condition. I is less than 5. Now tell me one thing, I is less than 5. 2 is less than 5, true? So that means true. Then what will happen? What will happen then? Answer on the screen. अगर ये true है तो फिर while का part चलेगा and value will be on the screen what? What will be the value? Values will be I. I की value कितनी है? 2. And then again updation. I equals to I plus 1. Now just check it out. What should be the new value of I then? The new value of I will be how much? Let's check it out. The new value of I will be 2 plus 1 3. So now when I equals to 3 के लिए हम next time चलते हैं. तो फिर दोबारा से I यहाँ पे 3 होगा. तो then again I 3 is less than 5. So I is less than 5 को मैं compare कर रहा हूँ. और ये true होगा students. So now that means again a true message is going to be reported over there. Then अगर ये true है, then what will happen? On the screen the answer will come values 3. Values 3 आएगा
and then again I equals to I plus 1 होगा. So now what should be the new value for the I variable then I plus 1. I plus 1 is students 3 plus 1 4. Now that we can say when I equals to 4, जब I की वैल्यू 4 होगी तो कैसे वर्क होगा. Listen, I is less than 5, 4 is less than 5, ट्रू है, and if it is true that means ये ट्रू रिपोर्ट हुआ है. So then the answer on the screen will be values 4. Now again update I equals to I plus 1. So now the new value of I will be what? That will be 4, 5. That will be 5. So now when I equals to 5. Now just check the condition student. I is less than 5 check कीजिएगा. When the value of I is 5 right now, I is less than 5. 5 is less than 5 students. True or false? False. Then what will happen? Then no while loop part will invoke. तो यहीं पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं. तो टर्मिनेटेड, हु इज टर्मिनेटेड? while loop. ठीक है. सो नाउ दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम गोइंग ऑन. तो ये टर्मिनेट हो गया है. क्लियर. सो स्टूडेंट यू जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग कि आपने प्रोग्राम को कुछ ऐसा एग्जीक्यूट किया, ये प्रोग्राम कुछ ऐसा एग्जीक्यूट हो रहा है, इतनी कंडीशंस बन रही हैं. एंड हाउ यू नो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज स्टूडेंट्स की कंप्यूटर इतना एक्सपर्ट है. दिस इज अ माइक्रो सेकेंड प्रोसेस. प्रिंटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 to 4 इज अ माइक्रो सेकेंड प्रोसेस. लेकिन ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एक्चुअल में इंटरप्रेटर परफॉर्म करता है. मतलब इनिशियलाइजेशन टेस्ट करेगा, ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा मेथड को, फिर अपडेट करेगा, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप इज नॉट गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर. तो स्टूडेंट इस तरीके से वर्क कर रहा है. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. लिसन, ये जो व्हाइल लूप है यहाँ पे चेक हो रहा है. मुझे आप ये सोचिएगा कि इफ दिस विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट देन व्हाट विल हैपन. अगर ये ट्रू होता है तो ऑब्वियसली दीज टू लाइन विल वर्क. लेकिन अगर ये फॉल्स होता है देन व्हाट विल हैपन? दीज टू लाइन विल नॉट वर्क. दैट मीन्स ये फॉल्स होने पे टर्मिनेट हो जाएगा. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 पे ये अपडेट तो कर रहा है, लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है. और ये यहाँ आने के लिए इंटरप्रेटर के लिए ये एंट्री पॉइंट है. इसमें ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. टू कम इनसाइड दीज टू ऑपरेट दीज टू स्टेटमेंट बाय द इंटरप्रेटर को परमिशन यहाँ से मिलेगी. ट्रू होगा तो डैट विल इन्वोक, ट्रू नहीं होगा तो डैट विल नॉट वर्क. That means what? This is the entry section of these two statements. That's why while loop is known as the entry control loop. Important point students. While loop आपका entry control loop होता है. इसका मतलब क्या है? Entry से जहाँ पे हम while को define करते हैं, where we define the while loop, वहीं पे check होता है. वही entry point है of the method of the while loop. while loop के method का वही एक entry point है. वहीं पे चेक हो जाएगा whether this method has to be operated or not. So that's why it is considered as a entry control loop. So I think स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है एंट्री कंट्रोल लूप फॉर्मेशन पे. इसमें स्टूडेंट मैं एक और प्रोग्राम आपसे डिस्कस करता हूँ, डेट हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर. ठीक है. सो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा. एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई नेक्स्ट प्रोग्राम, that is a factorial of a given number, but that will be done by the while loop only. इसको हम for loop से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको while के थ्रू सॉल्व करेंगे. Okay, now listen students, how the factorial of a given number can be executed. First of all student, let me talk you about the factorial, the meaning of factorial. आई थिंक जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, लेकिन जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना जरूरी है डेट हाउ द फैक्टोरियल इन मैथमेटिक्स कैन बी कैलकुलेटेड. तो फैक्टोरियल का मतलब है डेट सपोज डेट इफ आई एम गिविंग डेट आई हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5. मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन डिफाइन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन 5. और इसका मतलब है 5
into 4 into 3 into 2 into 1, and that will be 120 at the last. So we can say if the value, if the factorial of 5 we have to calculate, so program will give me the answer as 120. ठीक है, सेम एज हर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट दैट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन द प्रोग्रामिंग वे. मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये चेक करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, अगर n का हमें पता नहीं है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, बिकॉज वी हैव टू मेक ए सॉल्यूशन फॉर n. और n का मतलब है कि प्रोग्राम को फ्यूचर में कोई भी नंबर मिलता है n, that will work in the same way like it is working for 5. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई प्रोग्राम. सो हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क, लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कमेंट, ये कमेंट है तो ये आपका ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा. नाउ इसमें आप समझिएगा, फिर इसका मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि डेट हाउ दिस व्हाइल लूप इज वर्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल का जो प्रोसेस है वो कुछ अलग वे में होता है. तो लेट मी गिव यू द क्लियर आइडिया. स्टूडेंट जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल ऑलवेज वर्क्स आइदर 1 to n और n to 1. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर कि प्रोग्रामर उसको किस वे में इम्प्लीमेंट करना चाहता है. क्लियर? सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू असाइन n, and n is what? My factorial number, for which I have to calculate the respective factorial. Now you all know why I am using int, because by default string होता है. In the tutorial I have given already. ठीक है? So now I am going to assign the value of my n. So n को हम यहाँ पे assign करते हैं, and then after assigning the variable n, I am taking one fact variable, fact equals to 1. Now why I have taken fact equals to 1 ये हम चेक करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिएगा that this fact is a variable which is having the default value as 1, लेकिन इस fact के पास कहीं ना कहीं एक आंसर जनरेट होगा, and that we will check that how the answer is going to be generated. Now I am going to start with the while loop, but before that I am going to assign my I equals to 1. Now what is this I? Initialization variable, iterative variable है स्टूडेंट्स while loop का. एंड नाउ why it is a iterative variable, बिकॉज इसको मैं लूप के अंदर यूज कर रहा हूँ. while loop में अगर मैं इसका यूज करता हूँ that means that is a iterative variable. So initially the value of I is 1 and I is less than fact plus 1. Now why I have taken fact plus 1? I think the answer will be clear to you, because हमेशा एक fact plus 1 का मतलब है कि fact तक तो ही चलेगा. Clear? That's why the value of n plus 1. Just do the correction. That will be n plus 1. If the value of n is 5, so ये 6 तक, मतलब I is less than 6. That means up to 5 तक ये operate होगा. That in my last tutorial of the for loop I have explained this one. Now starting with the method. अभी student मैं method को लिख रहा हूँ and then I'll explain that why and how it is working actually. So fact equals to fact multiplied by I, and then when the loop will terminate, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑफ द फैक्टोरियल n. सो आई एम मेंशनिंग ओवर देयर ओके. नाउ जस्ट चेक इट आउट. प्रिंट that will be the answer on the screen. Now starting with this concept student, so मैं यहाँ पे working start कर रहा हूँ. आप ध्यान दीजिएगा how this working is going to be worked over the program, working of the program. So listen students, आप इसको अलग से समझिएगा. मैं अलग से लिख रहा हूँ लेकिन प्रोग्राम हमारा ये अलग चल रहा है. जो रेड लाइन में आपको अपीयर हो रहा है वो बेसिकली दीज आर द कमेंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग सो डैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, कि सर ने ऐसा कौन सा प्रोग्राम बनाया जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है. दीज आर नॉट द प्रोग्राम्स, ये केवल एक कमेंट्स है. सो नाउ स्टूडेंट वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम में सपोज डैट आई एम गोइंग टू रन माई प्रोग्राम. तो इंटरप्रेटर स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 1 से. नाउ व्हाट इज लाइन नंबर 1 स्टूडेंट्स? n इक्वल्स टू int इनपुट एंटर द नंबर, मतलब मुझे नंबर को एंटर करना है. सो लेट्स से
the value which I am entering right now is 5. ठीक है, so n is 5 initially, and then what is the value of fact right now, students? Fact equals to 1, and what is the value of I right now? I equals to 1. तो ये सब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने असाइन किए हैं. नाउ स्टार्टिंग विद दिस वन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हैश टैग अगेन. सो अब यहाँ से लूप स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स. सो नाउ जस्ट चेक इट आउट. राइट नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 1. तो इस पर टेस्ट करते हैं कंडीशन को. I इज लेस देन n प्लस 1. Now just take it out of one thing student कि what should be n plus 1? 5 plus 1 6. तो इसका मतलब ये है कि 1 is less than 6. ऐसा है. If I am saying I is less than n plus 1, so that will be 1 is less than 6. True or false? True. And if it is true, then what is the method? The method says that fact equals to fact into I. Now what is fact right now? 1 into, and what is I right now? 1. So 1 into 1, 1. So now the new value of the fact again is 1. Clear? Now just do one thing. I forgot to mention the updation over there, so updation भी कर देते हैं. I equals to I plus 1. So that means what? Now the new value of I equals to I plus 1. कितना होगा स्टूडेंट्स? I equals to I plus 1. Next value will be 2. So now I am going to start with the second condition when I equals to 2. चलिए, अब I की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है. Again now test condition, and test condition says that I is less than n plus 1. Sorry. Just wait a minute. Okay, now just check it out. When the value of I is 2, so now test condition again. While I is less than n plus 1, I is less than n plus 1. स्टूडेंट्स बताइएगा true है कि false है? That is true again. And if it is true, the method says that fact equals to 1 into या fact into I. Now what is the value of fact right now, students? चेक कीजिए मेमोरी पे. fact की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है. 1. ठीक है. सो फैक्ट की वैल्यू तो 1 है, बट नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ? 2. 1 into 2, 2. That means now the new value of the fact variable is 2. Then again update the value of I equals to I plus 1. So now the new value of I will be how much? I equals to I plus 1 करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? That will be 2 plus 1, that is 3. So now the new value of I is 3. Again I am going to use the condition. अब दोबारा I टेस्ट पे जाएगा. 3 is less than n plus 1. Now the value of I is 3. So now just take it out. I is less than n plus 1 students. I think ये true होगा. So that is a true message. और अगर ये true है तो fact निकालेंगे हम fact into I करके. Now fact into I. What is the value of right? Updated fact right now? 2. 2 into I. 2 into 3. कितना? 6. So now the new value of I is 6. Clear? So 2 into 3. Then the next line I equals to I plus 1. So now what should be the new upgrade value of I? That will be how much? That will be 4. So again then I is less than n plus 1. So that means when the value of I is 4, आपको लूप कंपेयर कर रहा है कि I is less than n plus 1. So now just check it out कि क्या ये कंडीशन सही है? 4 is less than 5. True. ये true होगा. Then fact equals to 2 into students, fact into I. Now what is the new value of I right fact right now? Fact into I में 6. 6 into I, 6 into 4, 24. Here we have the new value. So that means हुआ क्या इसमें एक्चुअल में? 6 into 4 हुआ, and that is 24. तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो फैक्ट की वैल्यू 24 हो गई है. Then I equals to I plus 1 students. I equals to I plus 1 करेंगे. I equals to I plus 1. So now what should be the new value of I then? 5. Clear? Now again, when the I is 5, just compare I is less than n plus 1. I is less than n plus 1. So I की value 5 है and 5 is less than 6. That's why I have used n plus 1.
5 इज लेस देन 6, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है, ना जस्ट कैलकुलेट फैक्ट, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई स्टूडेंट्स, कितना होगा, फैक्ट कितना है 24 इंटू आई कितना है स्टूडेंट्स 5, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, दैट मीन्स 120। नाउ अगेन जस्ट डू द अपडेशन, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करेंगे, that will give 6. Now again just execute the program when I equals to 6. तो I जब 6 होगा तो I is less than n plus 1. इसमें just check it out. I equals to 6 and I is less than n plus 1, मतलब कि 6 is less than 6. True or false? ये false होगा। और अगर ये false है तो while loop is terminated, ये terminate हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे terminate करते हैं। लेकिन टर्मिनेट होने के बाद द प्रोग्राम इज नॉट टर्मिनेटेड, ओनली द वाइल लूप इज टर्मिनेटेड। ठीक है, वाइल लूप टर्मिनेट हुआ है। देन जस्ट फाइंड आउट आफ्टर द वाइल लूप आई हैव मेंशन द प्रिंट स्टेटमेंट एंड इट इज प्रिंटिंग व्हाट, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कॉमा फैक्ट। नाउ जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज फैक्ट इन द लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन ये थी 24 इंटू 5 और ये फैक्ट को अपडेट किया गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट राइट नाउ 120। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स now the value of fact is 120 and one time the answer will be displayed on the screen. So student that is the working which I am highlighting right now. ये working है और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोच है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। कंप्यूटिंग अप्रोच क्या है, कंप्यूटर की अप्रोच क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 की जगह मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 किया, लेकिन मैं इसको रिवर्स भी कर सकता था। तो आपके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट कि आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कीजिएगा। मतलब अगर इसी अप्रोच का, मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ किया जाए तो ये कंप्यूटर कैसे इसको सॉल्व करेगा। तो आपके लिए ये हिंट है एंड यू कैन गो विद द एक्टिविटी। यू हैव टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में, ऑर्डर से प्रिंट होना चाहिए। देखिए यूजर विल गेट द आंसर 120 बट यूजर इज नॉट अवेयर कि आइदर 1 to n हुआ या n to 1 हुआ। तो ये आपको सोचना है, बिकॉज यू आर ए प्रोग्रामर। तो आपको ऐसा कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है जो n to 1 पे प्रोसीड करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द वे हाउ द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज गोइंग टू वर्क इन द प्रोग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं। सो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। इट इज आस्किंग मी द नंबर, आई एम एंटरिंग 5, सो 120 इज कमिंग। लेकिन मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ स्टूडेंट्स, और दोबारा रन करने पे इफ आई एम गिविंग द वैल्यू एज 34, तो आंसर विल बी सो ऑन। तो ये एक एक्सटेंडेड लिमिट आ रही है। ठीक है, सो इन दिस वे स्टूडेंट वी कैन रन आवर प्रोग्राम। सो स्टूडेंट दैट इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द फैक्टोरियल नंबर यूजिंग द वाइल लूप। वाइल लूप में इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज इनिशियलाइजेशन को वाइल से पहले डिफाइन करते हैं, देन टेस्ट कंडीशन, then method, then updation. Clear? So student, that is all about this one. Now student, in the next tutorial I'll discuss with the while loop, nesting in for loop statement जो पैटर्न डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बाकी तो the main thing will be clear to us when we will have the practical approach over the nesting in for loop. So student, one assignment I am giving you right now, you just go through this assignment, and this assessment is basically on the topic loop. So just go through this one, only 5 program I am giving you right now. So this is the activity student, activity on loop. You can use any of the loop, but मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप while loop में ही एग्जीक्यूट करें। Now student, the program number 3, program to find the factorial of a given number. आपको फैक्टोरियल क्रिएट करना है, लेकिन स्टूडेंट व्हाट आई विल सजेस्ट कि वन फैक्टोरियल प्रोग्राम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आप इसको भी बनाइए बट दैट विल बी फ्रॉम n to 1, 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा कुछ करना है, ना कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।